Question number 4. How many terms of AP? Andhra Pradesh minus 6 minus 11 by 2 minus 5. This is given arithmetic progression. How many terms? How many terms? You have to find the value of n. How many terms? N की value निकालनी है. How many terms of this AP are needed to give the sum of this n term? कितना होना चाहिए? Minus 25. Done. So Sn is given, AP is given. You have to find the number of terms to be added to give the sum of minus 25. So here from this AP we can write first term and common difference. And find करना है. First term A is minus 6 and common difference D is minus 11 by 2 minus 11 by 2 minus 6, so plus 6, that is equal to 2 6 are 12 minus 11 1 by 2. So common difference is 1 by 2. First term A is minus 6 and n आपको फाइंड करना है. ऐसे is given. Done. So यहाँ पर हम assume करते हैं let n numbers are added, है ना, ये हमने assume किया. Let n numbers to be added to give the sum of minus 25. Let n terms to be added to give sum minus 25. minus 25 सम करने के लिए हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो वो n हमें निकालना है. सो नाउ फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं सब. सम ऑफ n टर्म Sn इज, क्या हुआ बोलो, into D. Then put the values. So Sn is 25 minus 25 n by 2 into A is first term minus 6 plus n minus 1 into D common difference 1 by 2. डन. इसका सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को. ये 2 मल्टीप्लाई करके इधर लाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो इट्स a minus 50 equal to n. This will be minus 12. This one is n minus 1 by 2 ना. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, minus 50 equal to n. This will be minus 24 plus n minus 1 whole divided by 2. डन. सो इसका सिंप्लीफिकेशन माइनस 24 माइनस 1 को साथ में कंबाइन करो. सो इट्स minus 25 plus n और ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो इट विल बी therefore minus 100 equal to n, and this one is minus 25 plus n. अभी n को अंदर मल्टीप्लाई करो. therefore minus 100, this is equal to minus 25n plus n square. So here we are getting one quadratic equation, n square minus 25n, this will be plus 100, and that is equal to 0. This is one quadratic equation, solution of quadratic equation. Done. क्या होता है, n square minus 25n plus 100. इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. फैक्टर्स ऑफ 100 whose addition is 25 is 100. So it's a n square minus 20n minus 5n plus 100 equal to 0. Now factorization by grouping two terms. By taking common n minus 20 minus 5 common, n minus 20 equal to 0. So here n minus 5 and n minus 20 equal to 0. That means either n equal to 5 or n equal to 20. इसका मतलब क्या हुआ, आप टोटल 5 टर्म्स ले लो, उसका सम करो तो भी माइनस 25 आएगा, और आप टोटल 20 टर्म ले लो उसकी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और फिर से सब टर्म्स का एडिशन करो तो भी आपको माइनस 25 मिलेगा. डन. सो नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी 20 और 5.
two answers are there, two options are there for this question number 4. Clear, students? Yes. Now, next question. Question number 5. This is very good question. 5 number. So, in an arithmetic progression, sum of first pth term, that means, sorry, in arithmetic progression, pth term is 1 by q. This is given. Pth term is 1 by q. Qth term ना nth टर्म होती है ना, जैसे pth टर्म इज 1 by q, qth नंबर टर्म इज 1 by p, से रिजल्ट 2. So prove that sum of pq term, that means spq equal to 1 by 2 pq plus 1. This we have to prove. Condition is p and q are not equal. Done. So one arithmetic progression is given whose nth term है ना, nth term होती है, so whose pth term is 1 by q is there and qth number of term is 1 by p is there. Prove that sum of is p into q term, sum of pq term is 1 by 2 into pq plus 1. ये आपको प्रूव करना है. This we have to prove. This is given. Done. So let's start with the given. फॉर्मूला लिख देते हैं ना. फॉर्मूला हमारे पास जो है जनरल टर्म nth टर्म का वो होता है ए एन, और ए एन इज a plus n minus 1 into d. This is our general formula. So here instead of nth term, what we are given? We are given pth term. So here we have to replace this n with p. So now first one is ap. Pth term is a plus p minus 1. P minus 1 into d, and this is given pth term is 1 by q, so this is equal to 1 by q. Clear? Similarly qth term, so aq replace n with q, so it's a plus q minus 1 into d, and value of q term is 1 by p. Students ये समझ में आया? फॉर्मूला लिखा, n टर्म की जगह पर p टर्म और q टर्म लिखा, n की जगह पर p, q की जगह पर q, है ना. p टर्म इज 1 by q, एंड q टर्म इज 1 by p. इतना समझ में आ गया? बस इसको बोलो रिजल्ट 3, इसको बोलो रिजल्ट 4. अभी क्या करना है? नाउ सब्ट्रैक्टिंग दिस रिजल्ट 4 फ्रॉम रिजल्ट 3. सो नाउ सब्ट्रैक्शन करते हैं. 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग दिस रिजल्ट 4 फ्रॉम 3. सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड का. सो दिस विल बी a प्लस p minus 1 into d minus a plus q minus 1 into d. डन. और ये होगा 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p. ब्रैकेट ओपन करो और अंदर ये मल्टीप्लीकेशन भी कर दो साथ में. तो क्या होगा? a प्लस pd होगा, pd माइनस d माइनस a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल टू, ये होगा p माइनस क्यू, ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो p माइनस क्यू अपॉन एलसीएम पी क्यू. ब्रैकेट ओपन करेंगे, बोलो. खोलता हूं ना अभी नेक्स्ट स्टेप में. a प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू. खोल दिया. देखो क्या हो गया? प्लस डी माइनस डी कैंसिल, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, बच्चा पी डी माइनस क्यू डी. पी डी माइनस क्यू डी में से डी कॉमन ले सकता हूँ, है ना. डी कॉमन ले लो तो क्या होगा? देयरफॉर p माइनस क्यू इक्वल टू, ये डी बचेगा, इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू. और ये दोनों साइड पी क्यू कट हो जाएगा तो क्या होगा? डी आएगा आंसर. डी, है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? ये दोनों कट हो गया. डी इज 1 अपॉन पी क्यू. कॉमन डिफरेंस आ गया. डन. किसी भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम करें, हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी होना चाहिए और फर्स्ट टर्म ए होनी चाहिए. तो ये जो डी इक्वल टू 1 बाई पी क्यू है, उसको
ये आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 या फिर इक्वेशन 4 में पुट करो. डन. सो लेट्स पुट इन इक्वेशन 3. पुट इन रिजल्ट नंबर 3. ये हमारा रिजल्ट नंबर 3 है. क्या है? ए माइनस ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/q. ये जो डी की वैल्यू है ना, वो ये पुट करने वाले हैं. सो देयरफॉर रिजल्ट 3 विल बी ए प्लस पी माइनस वन, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी. डी की वैल्यू क्या डिराइव की हमने? 1/pq. 1/pq इक्वल टू 1/q. डन. इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या होगा? देखो, ये है ना, ये दिखता है ऐसे, p माइनस वन इंटू 1/q. कैसे होता है? p माइनस वन अपॉन पी क्यू, दैट इज इक्वल टू 1/q. ये एक टर्म है, उसको मैं राइट हैंड साइड पर ले जाऊँ तो क्या होगा? a इक्वल टू 1/q माइनस माइनस p माइनस वन अपॉन पी क्यू. ऐसे होगा. ये q है, पी क्यू है. एलसीएम ले ले तो क्या होगा? इसका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन. तो एलसीएम पी क्यू होगा, तो ये p ऊपर आएगा तो p माइनस और ये टर्म उसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस p प्लस वन होगा. तो माइनस p प्लस p कट तो आंसर आएगा a, और a इज 1/pq अगेन. देखो, a की वैल्यू 1/pq, d की वैल्यू भी 1/pq. हमारे पास a और d आ गया. a है, d है, तो सम ऑफ pq टर्म चाहिए. फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? सम ऑफ n टर्म, है ना, सम ऑफ n टर्म वाला फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. हमें सम ऑफ n टर्म नहीं चाहिए, हमें तो सम ऑफ पी क्यू टर्म चाहिए, p इंटू क्यू वाली टर्म. तो n को रिप्लेस करेंगे. n को रिप्लेस करेंगे कौन से टर्म से? पी क्यू, p इंटू क्यू से रिप्लेस करेंगे, है ना. तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, वो मिलेगा एस पी क्यू. देयरफॉर सम ऑफ पी क्यू टर्म. तो जहां पर n आपको नजर आएगा वहां पर क्या पुट करना है आपको? पी क्यू. ये दोनों प्लेस पर n है, तो दिस विल बी पी क्यू बाई टू. दिस इज अवर a. 2 into a is 1/pq plus n, n is pq minus 1 into d, d is 1/pq. तो इसके नीचे pq आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? और ये देखो, ये दोनों का एडिशन है और pq हम इसका एलसीएम ले सकते हैं. एलसीएम इज pq. तो दिस विल बी pq by 2. हियर pq is LCM. So numerator एडिशन क्या होगा? 2 plus pq minus 1. It's a 2 plus pq minus 1. 2 plus pq minus 1 क्या होगा? It's a pq by 2. 2 minus 1 pq plus 1. It's a pq plus 1 by pq. और ये pq pq कट हो गया. So sum of pq term is 1/2. 1/2 and this will be pq plus 1. ये आपको प्रूव करना था. Hence proof. Clear students? वेरी गुड. प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा, है ना. जो साइंस में पढ़ते हैं ना, जो भी स्टूडेंट सब कर देते हैं, तो आप भी कर पाएंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. हियर अगेन, if the sum of a certain number of terms of an AP, sum of certain number of terms, कितनी terms नहीं पता है तो वो ही निकालना पड़ेगा पहले. So given AP is arithmetic progression. Given AP is 25, first term is 25, second term is 22, third term is 19, up to infinite. Sum of certain terms of AP is 116. Certain terms कितनी नहीं पता है. So let sum of n term, n number of terms, certain terms, है ना, SN 116. ये समझ में आया? Sum of certain term कितनी नहीं पता है तो n ले लिया. Sum of n term is 116. So SN is given. AP is given. So from this AP we can write first term is 25. First term is 25, and we can also write common difference D. Common difference D is 22 minus 25, which is minus 3. Common difference is -3. Done. So A is there, D is there, SN is there.
सो वी कैन फाइंड सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। पहले तो सर्टेन नंबर ऑफ टर्म फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसकी लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। इसकी लास्ट टर्म कौन सी वो नहीं पता है, सपोज nth टर्म लास्ट टर्म होगी, लेकिन वो कौन से नंबर की टर्म है वो तो नहीं पता है। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, उसके बाद लास्ट टर्म फाइंड करेंगे। डन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगी हमारे पास, एस एन है, ए है, डी है। फॉर्मूला एस एन वाला फॉर्मूला, एस एन इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n by 2 2a plus n minus 1 into d। डन। यहाँ पर हमने एज्यूम किया सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 116, सो ये 116 आ गया। टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर वो तो हम फाइंड कर रहे हैं। 2 into first term arithmetic progression is given in which first term is 25 plus n is unknown into d is common difference, वो भी हमें मिल गया -3। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा कितना होगा 260 232 इक्वल टू n, दिस विल बी 25 2 जा 50 minus 3n plus 3 232 n 50 plus 3 53 minus 3n। डन। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ये कुछ अलग अलग सा दिख रहा है। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। तो अभी इसको फॉर्म में लिखे 3n स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पर ले लो तो दिस विल बी 3n स्क्वायर, ये n था 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। डन। अभी इसका फैक्टराइजेशन, अभी इसको आपको स्प्लिटिंग टर्म मिडल टर्म कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप उसका डायरेक्ट वो है ना जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो अप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालो। सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर इट विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके भी आंसर आ जाए तो वो कर सकते हो। अभी मुझे कुछ अलग दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। सो हियर a is 3, b is -53 and c is 232। डन। तो इसका हमें रूट्स मिलेंगे, आंसर सॉल्यूशन। So what is our root n? N will be minus b plus or minus 2 roots are there into discriminant, that is b square minus 4ac divided by 2a। Values put करो, simplify करो, minus b minus minus plus 53 plus or minus square root of b square 53 square निकालो, चलो फटाफट। 53 square minus 4 into a 3 into c 232 divided by 2 into a 3। So this is 53 plus or minus, बोलो 53 square 9 25 2809, वेरी गुड। माइनस ये मल्टीप्लीकेशन 12 into 232 4 8, हाँ वही 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 आ रहा है, हाँ हाँ वही आया वही आया, वेरी गुड। डिवाइड बाय 6, अभी इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा 2805 25, वेरी गुड। 53 प्लस और माइनस, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाई 6, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा 53 plus or minus 5 divided by 6। So here two roots are there, n equal to 53 plus 5 by 6 or 53 minus 5 by 6। तो इसका आंसर क्या आएगा 58 by 6। ये तो कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है ना। व्हाट इज अवर आंसर? आंसर इज नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे पॉइंट में नहीं आएगी, वो हमें सब है ना वोल नंबर ही चाहिए। इट्स 48 by 6 8। So n equal to 8 is the possible answer. So total number of terms are 8। This is not possible है ना, this value is not possible। क्लियर? क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में कैसे टर्म होगी 1.5, वो कोई टर्म होगी है ना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकती। सो नेचुरल नंबर इज अवर टर्म। सो टोटल 8 टर्म्स आर देयर।
सो हियर सम ऑफ 8 टर्म इज 116. दैट मीन्स जो लास्ट टर्म होगी ना वो हमारी 8 टर्म होगी ना. टोटल 8 टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 8 टर्म और लास्ट टर्म. व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द लास्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज 8th टर्म. क्लियर स्टूडेंट्स? सो फॉर्मूला सबको पता है 8 टर्म निकालने का. nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला it is an. So nth term will be last term. So it's a plus n minus 1 into d. Take n equal to 8 because total number of terms are 8. Total 8 terms है तो last term वो 8 नंबर की टर्म होगी. और यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये कितना था? 25 था. और कॉमन डिफरेंस ली कितना आ रहा था? माइनस 3 आ रहा था. Done. Put these values. So 8 term will be the last term. That is 25 plus 8 minus 1 into minus 3. This is 25 plus 7 into minus 3. So 25 minus 21. Eighth term, that is our last term, is 4. Our answer is last term of an given AP is 4 is the answer. Clear students? समझ में आ रहा है? वेरी गुड. चलो 7 find the sum of n term of AP. Sum of n term. क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है डिफरेंट पार्ट्स में और जो आपको गिवन है वो आपको डिराइव करना है. सो हियर फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. सम ऑफ n टर्म ये आपको फाइंड करना है. ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है. वो केस टर्म इज केस टर्म. तो केस टर्म को लिखेंगे ऐसे ए के. केस टर्म इज 5k plus 1. डन. दिस इज के टर्म. तो क्या हम ऐसे निकालना है तो ऐसे निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? ऐसे निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आ जाए तो सब कुछ निकाल सकते हैं. तो ये केथ टर्म है तो फर्स्ट टर्म फॉर फर्स्ट टर्म व्हाट यू टू पुट है ना. सपोज nth टर्म ले लो, ये केथ टर्म है ना तो इसके ऊपर से आप nth टर्म लिख सकते हो. देखो n टर्म क्या होगा तो k की जगह पर n तो आ गया 5n plus 1. दिस इज अवर nth टर्म और nth टर्म को हम लास्ट टर्म बोलते हैं. देखो कैसे लॉजिक जा रहा है. केथ टर्म बता दिया, हमें सम ऑफ n टर्म चाहिए. कौन से फॉर्मूला पर वर्क करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल. बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के लिए हमारे पास के टर्म दिया है तो के टर्म को हम एच टर्म ले ले तो एन टर्म हमारी लास्ट टर्म होती है. तो दिस इज अवर लास्ट टर्म एल. और फर्स्ट टर्म के लिए क्या चाहिए? फॉर फर्स्ट टर्म पुट n इक्वल टू 1. सो वी गेटिंग a1 इज अवर फर्स्ट टर्म. So it's a 5 into 1 plus 1. This is equal to 6. So first term is 6. Last term L is 5n plus 1. So we'll directly get sum of n term. Sum of n term is n by 2 a plus L. Clear students? This is n by 2 a. A is first term which is 6 and last term kth term में आपने n term put कर दिया तो हमारा last term हो गया. That is 5n plus 1. So sum of n term is n by 2. 6 plus 1 7. 5n plus 7. 7 plus 5n or 5n plus 7 is the answer. Done. So this is the solution of your question number 7. इसमें किसी को कोई डाउट ना? ये 2 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है. वो 2 मार्क्स ये सेट क्वेश्चन आएंगे. आगे बढ़े. So now question number 8. Question number 8 देखते हैं. चलो. Here sum of n terms of an AP is sum of n term of AP is Pn plus Qn square. Sum of n term. So given sum of n terms. Sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square. Sum of n term. Where P and Q are constants. ये
कांस्टेंट है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। अरे क्या बात, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, बस इतना ही दिया है। तो बोलो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, किसको पता है? हाँ, जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? जो भी टर्म होगा उसके अगली प्रीसीडिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए एन माइनस ए माइनस वन होगा, है ना? ये टू है तो टू माइनस वन होगा, ये थ्री है तो थ्री माइनस टू होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ये फिफ्थ टर्म है तो फिफ्थ माइनस फोर्थ टर्म होगा। दिस इज दी जनरल फॉर्मूला टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो? नो, वेरी गुड। तो हमें ए एन और ए एन माइनस वन चाहिए, तो हमारे पास अगर ए एन आ गया, है ना, ए एन आ गया, तो हम ए एन माइनस वन भी निकाल सकते हैं। डन। तो ए एन माइनस वन निकालेंगे तो डी भी मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी हमारे पास एस एन है तो ए एन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में आया था, जो रैंकर होगा उसको पता होगा। बोलो, एस एन निकालना है, ए एन इज गिवन। कोई है जो मुझे बताएगा फॉर्मूला? नो, एस एन इज, एस एन क्या होता है? हाँ, यस यस, क्या बोला? हाँ, जो बोला वही, सम ऑफ एन टर्म माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म, है ना? सपोज चार टर्म है तो सम ऑफ फोर टर्म में से सम ऑफ थ्री टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगी। तो ये हमें एस एन नहीं, ए एन मिलेगा। डन। सो ए एन इज एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये ए एन का फॉर्मूला है। देखो ये पूरा सीक्वेंस हो गया। एस एन इज गिवन, so from this Sn we will obtain Sn minus 1. An, so we will obtain Sn minus 1. यो बीच में कॉल आ गया था, अभी आ गया। रेडी, कंटिन्यूस। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? ओके। देखो Sn इज गिवन, तो Sn पर से हम Sn माइनस वन फाइंड करें, उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो An मिलेगा। An पर से हम An माइनस वन निकालेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, कॉमन डिफरेंस D मिलेगा। डन, पास मिल गया आपको सम का। सो लेट्स स्टार्ट विथ Sn। Sn is Pn plus Qn square. So from this Sn we can find Sn minus वन, है ना? Sn के ऊपर से हम Sn माइनस वन निकालेंगे। कैसे? n की जगह पर n माइनस वन पुट करेंगे। इट्स अ P n माइनस वन प्लस Q n minus वन square. So this is our Sn minus वन. So what is our Sn minus वन? It's a Pn minus P plus Q n square माइनस टू एन प्लस वन। सिंप्लीफाई करके छोड़ दो। एस एन माइनस वन पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस टू क्यू एन प्लस क्यू। ये समझ में आया? एस एन गिवन, एस एन माइनस डिराइव किया, इसके बेस पर से हमें क्या मिलेगा? अभी ए एन मिलेगा। सो नाउ ए एन और ए एन इज एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन तो हमने दिया है गिवन, और एस एन माइनस वन हमने डिराइव किया, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो हमें मिलेगा ए एन। डन। सो एस एन इज दिस वन, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर माइनस एस एन माइनस वन, दिस वन, पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वेयर माइनस टू क्यू एन प्लस क्यू। सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट ओपन करो, तो इट्स अ पी एन प्लस क्यू एन स्क्वेयर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वेयर प्लस टू क्यू एन माइनस क्यू। डन। बोर्ड ले दिया है। कट होता है कुछ, देखो कट क्या होगा, ये प्लस पी एन माइनस पी एन कट, और कुछ हो रहा है, ये प्लस क्यू एन स्क्वेयर माइनस क्यू एन स्क्वेयर कट। तो अभी बाकी बचा पी प्लस टू क्यू एन माइनस क्यू, पी प्लस टू क्यू एन माइनस क्यू। दिस इज अवर ए एन।
ए एन मिल गया। अभी क्या चाहिए हमें, ए एन माइनस वन चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप है ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और ए एन इज पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, है ना, ये लिखा मैंने, सीक्वेंस चेंज की। तो अगर ए एन हमारा टू क्यू प्लस एन होता है, सो देयर फोर वट इज अवर ए एन माइनस वन, जहाँ पर एन होगा वहाँ पर आपको एन माइनस वन रखना है। इट्स अ पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू n minus 1, and hence a n minus 1 is p minus q plus 2qn minus 2q. This is our a n minus 1. तो अभी a n भी है, a n minus 1 भी है, तो कॉमन डिफरेंस d मिलेगा, जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड d. So now we can find our d. So what is d? d is a n minus ए एन माइनस वन, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन लिखे पहले, ए एन तो क्या होगा, पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन माइनस ए एन माइनस वन, ये पूरा